Good morning, everyone. Today is my last day in Ujjain, and आज थोड़ा सा I just had a thought कि some people ask me कि is sales worth it after IIM? Like you have worked so hard, you prepared for CAT, you did so much interviews with 2 साल इतने पैसे खर्च करके MBA के IIM से, and now you are going into sales. Is it worth it for you? So I get a lot of questions around this. तो यार बेसिकली मतलब आई एम नॉट येट टू मेच्योर और एक्सपीरियंस्ड, आई एम जस्ट लर्निंग फेज में ही हूँ भी. तो अभी के हिसाब से आई फील कि यार सेल्स इज़ इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली इट इज़ रनिंग अ कंपनी, तो सेल्स तो ज़रूरी है इन शॉर्ट. बट इज़ इट समथिंग दैट मतलब इट जस्ट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, लाइक कि उसे उसकी पर्सनालिटी कैसी है. लाइक माई मेंटर टोल्ड मी कि फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट योर पर्सनालिटी एंड देन यू हैव टू चूज़ द रोल्स अकॉर्डिंगली. तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है कि दे आर नॉट दैट एग्रेसिव, एंड सेल्स में इट्स नॉट ऑलवेज वेरी जो हम सोचते हैं MBA कॉलेज में बैठकर कि हम प्रोडक्ट बेचेंगे, वो आएगा लेगा एंड सेल्स चलती रहेगी. हमेशा ऐसा नहीं होता. समटाइम्स यू हैव टू वेरी एग्रेसिवली फॉलो अप, यू हैव टू पुश देम लाइक कि यार मतलब उन्हें आपको मोटिवेट करते रहना पड़ता है टू बाय योर प्रोडक्ट. और इट्स नॉट ऑलवेज वेरी वो मीठी मीठी बातें, वैसा नहीं होता है सेल्स में ऑलवेज. यू हैव टू समटाइम्स बी strong, be firm, and you have to get the sales done. You have targets और उसे fulfill करना होता है. और this is like obviously sales is not that easy also, because it requires a lot of skills, hard working. You have to be good communicator, you have to be good negotiator, and also you have to think about the customer as well, your network as well. You cannot just do sales by getting profit for the company. You have to make sure that the products which you are giving to the customers, to the networks, that also gets liquidate. It's not like कि सिर्फ लोगों के गोडाउन्स भरने हैं. यू हैव टू गेट इट लिक्विडेट. उसको भी उन्हें बिकवाने का भी जिम्मेदारी आपकी होती है, बिकॉज अगर वो बिकेगा नहीं तो फिर यू वोंट गेट नेक्स्ट ऑर्डर. और सो सेल्स इज़ लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वी ऑलवेज फील कि हम IIM के बाद कैंपेन्स बना रहे होंगे, स्ट्रैटेजी कर रहे होंगे. नो डाउट ऐसी भी रोल्स होते हैं, कंपनीज होती हैं वेर यू डायरेक्टली गो इन टू कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग के रोल्स. बट in tier 2 IIMs, like new IIMs, जिसमें you won't get marketing के role as such, you won't get brand management, you don't get pure marketing or such roles, because there is mostly sales oriented roles are there. तो ये it's a harsh reality. I won't like sugarcoat anything. तो सेल्स इज़ समथिंग यू कैन नॉट, भाग नहीं सकते उससे. सेल्स तो करनी ही करनी है. इवन इन मार्केटिंग आई हैव लाइक देर आर टारगेट्स यू हैव टू फुलफिल कि तुम्हारे ऐड का जो रन रेट है, इज़ इट इंक्रीजिंग और इज़ इट द सेम जो तुमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इन द कैंपेन्स, एडवर्टीजमेंट, आर यू गेटिंग द रिटर्न or in 2x 3x or something like that. तो pressure is not something which is going to leave you. if you feel कि sales की job में बहुत pressure होता है तो sales के अलावा everything is fine. yeah, it's just like grass is always greener the other side. मतलब इफ़ यू फील कि HR के रोल्स बहुत ईजी होते हैं यार, वो कर लेता हूँ, बट when you get into that role you find it out कि यार nothing is easy. it's all about what you like to do, and अगर वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है it already becomes easier for you. तो if someone likes to kind of think, if someone's personality is strategy thinking, analytical, so that person won't find sales मतलब that he can do the sales, but he won't find a passion in doing it. It will be just like, yeah, I'll do sales, I'll get my salary, I'll go home, I'll pay my bills, that's it.
So first of all, we need to not only, I'm not telling it this to you, I'm just reflecting myself also, and it's like just a you can say a open discussion kind of thing. So we need to find out our personality, where it aligns, if it is aligned to which kind of roles. So there are some people who like aggressively sales, और वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे नेगोशिएटर होते हैं, तो दे कैन दे द फिट विल बी द सेल्स रोल उनके लिए. और कुछ लोगों को स्ट्रैटेजी और इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है. इट्स जस्ट नॉट, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग इट बिकॉज अभी उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कंसल्टिंग और ऐसे जॉब्स का. But you need to figure it out yourself, what kind of jobs you want to see yourself after 5 years. So you'll get a clarity. I'm also I'm also figuring it out. I'm a management trainee right now in sales and marketing, and I did sales in my last stint in Surat. If you check my LinkedIn, I increased the revenue 3 times 4 times. But the point is कि you have to figure it out. Do that thing really makes you happy, or you feel motivated by doing it, or you just want something to do strategically, थोड़ा analytic think करना है, या फिर चीज़ों को how you process, like if some product is selling, like Xerox, if I give an example. Xerox is a company, but when today when we hear in a photocopy shop, we don't say कि मुझे photocopy दे दो, we say Xerox कर दो. So Xerox as a company has that brand positioning in the mind कि अभी सब कोई उस चीज़ को ही, is the first mover always, right? तो we need to find it out कि अगर जो बाकी कंपनीज फोटोकॉपीज़ की है, आर दे हैप्पियर कि उनका माल जो बिक रहा है वो ज़ेरोक्स के नाम से बिक रहा है कि ज़ेरोक्स दे दो प्रिंटर्स. तो दे हैव टू फाइंड इट आउट. अगर सेल्स उनकी ऑब्वियसली बढ़ेगी इफ़ दे डू इट इन डिस्गाइज ऑफ ज़ेरोक्स, बट as a marketing perspective, it is not a good idea because your brand has no positioning right now in the mind of the consumer. They are means एक बार वो घर लेके जाएंगे तो obviously they'll read the name, वो थोड़ा सा उनको ऐसे बार बार उसको देखेंगे तो थोड़ा रिकॉल होता रहेगा, but as it's not sure next time वो तुम्हारे ही शॉप से लेने आएंगे, they might go directly to Xerox copy, तो तुम्हारा ब्रांड का तो कहीं नाम ही नहीं आएगा. So just try to find it out what kind of thinking you get after seeing these things. तो तुम्हें क्या ये खुशी मिल रही है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जाम्पल, ओके, तुम्हें ये खुशी मिल रही है कि सेल्स बढ़ रही है हमारे फोटोकॉपी प्रिंटर्स की, या यू आर worried about your own brand's name कि when will it get the you know जो उसको अटेंशन चाहिए वो. तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करके वी कैन फाइंड इट आउट कि विच थिंग्स रियली अलाइंस अस. तो marketing या sales, obviously I am very passionate about marketing, or it's kind of I want to see myself in marketing like right now. तो अभी तो मैं फील करती हूँ कि I want to go in marketing, but sales is very important. मुझे ये रियलाइज़ हो गया when we sit in board rooms और ऐसे ऑफिस में बैठकर हम जो भी कैंपेन से स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं ना, it doesn't land properly अगर वो जो फील्ड में या फिर जो मार्केट में है वो चीज़ उनको समझ नहीं आएगी ना, तो तुम कितनी भी अच्छी ल्यूक्रेटिव कैंपेन्स एड चला लो, इट डजेंट मैटर, यू वोंट गेट द रिजल्ट्स. तो फील्ड प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट आई फेल्ट लाइक इट इज़ इररिप्लेसेबल, बी इट सेल्स, मार्केटिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. You have to go to the ground, you have to understand the last miles, what they are thinking. तो फील्ड प्रेजेंस तो इम्पॉर्टेंट है, बी इट सेल्स और मार्केटिंग. अब तुम्हें चूज़ करना है कि विच काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू. लाइक डू यू वांट टू यूज़ योर ब्रेन पावर और योर मसल पावर, मसल इन द टर्म्स ऑफ योर माउथ पावर, वॉट एवर यू कैन कॉल. सेल्स में तो यू हैव टू टॉक, राइट, बात करनी होती है, उन्हें नेगोशिएट कम्युनिकेट करना होता है. तो you just have to find it out which part of that would you like to use in next 5 years. मतलब स्ट्रैटेजी के रोल्स में ऐसा नहीं है यू वोंट हैव टू बी इन फील्ड, यू हैव टू बी इन फील्ड. बस एक डिफरेंस रहेगा कि उतना एग्रेसिवली यू डोंट हैव टू पिच समवन,
यू हैव टू पुल, यू डोंट हैव टू पुश एनीथिंग. तो सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस तो पढ़ा ही है अपन ने. और देखो ये अपन वर्ड आई नेवर यूज टू यूज़. अभी मेरे को बहुत सी चीज़ें ऐसे होता है. अभी मेरे को जो मैंने वर्ड यूज़ किया इट्स नॉट माई वर्ड, मैं मुझे यूज़ करती हूँ, हम यूज़ करती थी स्कूल टाइम में, बट इट गेट्स चेंज, यू नो. जस्ट तो ऐसे ही बता दिया मैंने. तो हमें वी हैव टू फाइंड इट आउट वॉट एक्साइट्स अस. तो ये चीज़ें आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, इवन start MBA journey, because you need to know what kind of things really excites you and you want to pursue your career in, because there's a lot of options available sometimes and you get confused कि यार स्ट्रैटेजी में जाऊँ, मार्केटिंग में जाऊँ, सेल्स. एंड सेल्स से हम सब डरते हैं, नो डाउट, आई वोंट डिसएग्री अबाउट इट. हम सबको लगता है अरे यार सेल्स नहीं करनी भाई. मैं ऐसे जाके IIM से MBA करने के बाद मैं ऐसे जाके सबसे बोल नहीं सकता कि प्रोडक्ट खरीद लो. पुश नहीं कर सकता मैं लोगों को. आई नीड समथिंग कि लोग मेरे पास खुद चल कर आए. तो वो सबकी होती है मेंटालिटी. मेरी भी थी, है भी मे बी, और सबकी होती है. नो वन वॉन्ट्स टू गो इन सेल्स एज सच. मतलब कोई ऐसे बोलेगा नहीं कि आई वॉन्ट टू डू सेल्स. मतलब डीप डाउन उनके दिमाग में चल रहा होगा कि आफ्टर सम ईयर्स आई वॉन्ट डू सेल्स. या सेल्स की जॉब थोड़ी तो एग्जॉस्टिंग होती है, नो डाउट, क्योंकि यू हैव टू बी इन फील्ड, यू हैव टू कंटिन्यूसली टेक कॉल्स ऑफ द कस्टमर, सॉल्व देयर क्वेरीज, और उनको सर्विसिबिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करनी होती है. तो यू हैव टू जस्ट एंड टू एंड जो लीड साइकिल होती है उसमें तुम्हारा पार्ट होता है. तो एग्जॉस्टिंग तो होता है बट रिवॉर्डिंग भी होता है इन टर्म्स ऑफ यू गेट अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स, यू गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स. मतलब फील्ड में रह के तुम जो चीज़ सीख सकते हो ना, यू कैन नॉट लर्न इन बुक्स. मतलब मैंने रूरल मैनेजमेंट में पढ़ा था मेरे कॉलेज में, काफ़ी कुछ सीखा था, बट नाउ आई एम लाइक लाइव देख रही हूँ उस चीज़ को, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है मुझे. तो ऑब्वियसली फील्ड प्रेजेंस तो मैटर करता है. तुम सेल्स करो, मार्केटिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट जिसमें तुम्हें ऑपरेट करना है. और सेल्स से इतना डरो नहीं यार. जस्ट इट्स द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट योर करियर विद. क्योंकि स्टार्टिंग में एवरीवन सेज कि यार 1-2 साल का तो सेल्स होना ही चाहिए. बीट एनी कॉलेज, तुम किसी भी कॉलेज से जा रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल्स से तो भाग नहीं सकते. हाँ, उसको लेवरेज कर सकते हो. हाउ कैन यू यूज़ द लर्निंग्स फ्रॉम दैट टू समथिंग विच यू हैव पैशन अबाउट. तो just try to align it, find it out. I'm also kind of figuring it out, what kind of jobs really I want to do and what will be something I want to see myself in 5 years, next 5 years. So let's figure it out together and find it out what we want to do. And ऐसा कुछ नहीं है कि IIM से हो तो सेल्स नहीं करनी यार. मुझे नहीं लगता कि बल्कि आई फील कि तुम्हारे पास IIM का नॉलेज है, नाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिकल नॉलेज फील्ड का, यू विल हैव एन एज विथ अदर्स. मतलब जो भी MBA नहीं किए हैं, तुम्हें बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग मिल गया है, अच्छे कॉलेज से मिला है, तो यू माइट बी हैविंग दैट एज ऑल्सो. बट यार एट द एंड ऑफ द डे IIM से हो, IIT से हो, काम उसी ऑफिस में करना है. हर कोई, मतलब you have to work with people who may not be that qualified like you. So at the end of the day, I think degree should not be the thing to decide what role you get. It should be your own competencies and your own learnings, how you have evolved yourself, how much knowledgeable, how much experience you are. That should decide your role, not which college you are from. So that's all for this video. I get a lot of people, means अगर मैं किसी को बताती हूँ I'm doing sales, they are like, oh my god, why are you doing sales यार, तुम कुछ और क्यों नहीं कर लेते, why don't you go to HR, why don't you do marketing. Guys, मार्केटिंग सबका सपना होता है आई फील, लेकिन उसके पहले सेल्स तो करना ही पड़ता है. तो सेल्स इज़ समथिंग यू कैन नॉट रन फ्रॉम, उसको तो लेकर ही चलना पड़ेगा. एंड इट्स अ प्लस पॉइंट ऑल्सो. मतलब एग्जॉस्टिंग होता है बट लर्निंग भी बहुत होता है. यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इतना जल्दी यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम बुक्स. और सेल्स में इट्स वेरी कुछ चीज़ें उसकी अच्छी भी है, लाइक गेट टू मीट न्यू पीपल एवरी डे, यू गेट टू टॉक टू पीपल. मतलब जैसे बात करना पसंद है फॉर देम, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू. मतलब तुम जाके सबसे बात करते रहो, हाल चाल लेते रहो, नेटवर्क से रिलेशंस बनाते रहो. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. फिर रिलेशनशिप से तो बहुत ही बिजनेस बिल्ड हो जाते हैं यार. तो
उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ समटाइम्स यू हैव टू पुश, यू हैव टू बी लाइक, प्रेशर होता है कि टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, all those kind of things. तो if people, some of the people who want to like, they are very good at working under pressure, तो उनके लिए चीज़ें बहुत ही ईजी होती है, सेल्स भी. और मेरे तो ऑर्गेनाइजेशन भी इतने 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं. आई एम गेटिंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. सेल्स के बारे में नेटवर्क से मिल रही हूँ, एंड आई एम लाइक ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, हाउ थिंग्स ऑपरेट, हाउ बिजनेस वर्क, व्हाट आर द मेंटालिटी एंड साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स, हाउ दे वर्क. सो आई थिंक दिस विल हेल्प मी अ लॉट इफ़ आई एवर गेट इनटू मार्केटिंग. तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करेगी, नो डाउट. एंड देयरफॉर आई फील कि IIM से हो या कहीं से भी हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस. और वो ऐसे ही होगा जब तुम सेल्स फील्ड में जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा लोग कैसे ऑपरेट करते हैं. फिर तुम उनके लिए अच्छे कैंपेन्स, अच्छे एड्स, अच्छी स्कीम्स ला सकते हो. इट्स नॉट ऑल लाइक, इट्स नॉट फ्रॉम टॉप टू डाउन. ऐसे काम नहीं कर सकते मार्केटिंग में. यू हैव टू गेट टू नो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. एंड टुडे इज़ लास्ट डे इन उज्जैन. आई होप, मैं महाकालेश्वर नहीं जा पाई, मेरे को टाइम नहीं मिला, बट मे बी नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.